After 3 minutes, please do the opening prayer, CV John. Yes, brother. Yes, brother. I will do that. Shall we pray? Yes, brother. Please. Yeah, brother. I told you, no, 7 o'clock. Wait for 7 o'clock and start the prayer. Yeah. Almighty God, our gracious, loving Heavenly Father, it is our privilege to come to you, Lord, this evening as corporate prayer of the church. We thank you, Father, for the blessing of being together with one mind, one spirit, understanding that our Father in heaven is glorified in his Son who taught us how to pray. We thank you, Father, for the individual prayer and church prayer, corporate prayer, intercessory prayer, family prayer. We thank you, Father, prayer of our mind, spirit, and soul. Dear Lord, you are there to understand us, even our sighing, even our deep anguish. When we pray without words, you still translate into a prayer of saints and making our intercession and prayers valuable and purposeful, giving us an opportunity to look forward with all the answers to prayers we received in the past is a testimony of your faithfulness, Lord. We know that we are not at all single-minded in our own things, but for your purpose, Lord. When we pray, as you have taught us, all the glory, power, and majesty, all the goodness and mercies are belonging to you. And we receive it with thankfulness, Lord. Even tonight, as the church, as we are gathered, let there be that freedom of move of the Spirit in our spirits, that we may be guided by the Holy Spirit, as well as by the Word of God, by singing and also exalting your name among us. Yes, Lord, it is our priority number one to know you in deep relationship with that great agape love, which you will never discard us, never disappoint us. We thank you, Father. You are there to meet us personally as well as collectively. We thank you, Lord. We can come to you at any time, but for this time, is our minds be united in your presence, with your wisdom, with your understanding. The Spirit speaks to Spirit, so that there will be
massive result of prayer, as if there's nothing has happened in the past, will happen in the future. Our prayers are answered according to your blessed will, other than our own wishes or desires. We thank you for giving us this opportunity, Lord, together. Let the saints, as we are called out, gather together. Let your name be glorified among us. Let our prayers be heard according to your blessedness, that we will be blessed and we will be a blessing to each other, uniting our spirits for your glory. Our coming together is for your kingdom's purpose, building the church of God. Help us, Lord, in Jesus' precious name we pray. Amen. आमीन। आइए हम लोग सॉन्ग गाएंगे हिंदी में 399 और तेलुगु में 545। हिंदी में 399 और तेलुगु में 545। सर्वशक्तिमान मेरे सच्चे प्रभु जी, सर्वशक्तिमान मेरे सच्चे प्रभु जी, सर्व सदा स्तुति करूं मैं तेरे, सर्व सदा स्तुति करूं मैं तेरे। आनंद है, महा आनंद है, आनंद है, महा आनंद है। आश्चर्यकारी सुने, आश्चर्यकारी सुने, मेरे पापों को है क्षमा कर दिया, मेरे पापों को है क्षमा कर दिया। बंदी गृह से मैंने पुकारा, बंदी गृह से मैंने पुकारा, स्वर्ग से तूने उत्तर दिया, स्वर्ग से तूने उत्तर दिया। आनंद है, महा आनंद है, आनंद है,
क्षमा कर दिया। इज़राइल का रक्षक है प्रभु, इज़राइल का रक्षक है प्रभु, ना उठेगा और ना सोएगा वह, ना उठेगा और ना सोएगा वह। आनंद है, महा आनंद है, आनंद है, महा आनंद है। आश्चर्यकारी यीशु ने, आश्चर्यकारी यीशु ने मेरे पापों को है क्षमा कर दिया, मेरे पापों को है क्षमा कर दिया। प्रार्थना के सारे प्रतिफल, प्रार्थना के सारे प्रतिफल प्यारा प्रभु देता है। हालेलुया, प्यारा प्रभु देता है। हालेलुया। आनंद है, महा आनंद है, आनंद है, महा आनंद है। आश्चर्यकारी यीशु ने, आश्चर्यकारी यीशु ने मेरे पापों को है क्षमा कर दिया, मेरे पापों को है क्षमा कर दिया। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन के हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय, उसका मैथ्यू रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। हम इस वचन को कई हफ्तों से ध्यानमन करते आ रहे हैं और आज भी इसमें से एक भाग को हम लोग ध्यानमन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 11 वचन। एक ही वचन हम पढ़ेंगे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर इस पढ़े वचन को आशीष करें और हम सबसे प्रभु बातें करें, हमें और आपको। जैसा प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया था अपने चेलों को, वैसा हम भी सीखें प्रार्थना करने के लिए, और प्रभु हम सबको सहायता करें। छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे सहायता के लिए। हमारे प्रेमी, अनुग्रहकारी, विश्वास योग्य और सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु उनका प्रभु, एक बार फिर प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मंडल की प्रार्थना में आपने हमें इकट्ठा होने के लिए सहायता किया है। स्तुति गाने में प्रभु जी आपने सहायता किया, क्योंकि हमारा प्रार्थना के प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हैं। इसीलिए बड़े उल्लास हर्ष के साथ में हे प्रभु हम आपके चरण पे आते हैं। और प्रार्थना में जाने से पहले जो वचन के भाग को हम पढ़ा है, पिता वचन को आशीष करें और हम सबसे बातें करें, हमें प्रार्थना करने के लिए तैयार करें। मैं तुच्छ को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं अयोग्य निकम्मा दास हूँ, मुझे आप सहायता करें। क्रूस कार्ड में छिपाए और बोलने के लिए सहायता को चाहते हुए प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिताजी सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर हमने देखा था, कैन यू हियर मी ना? आई एम ऑडिबल ना? Yes, brother. Yes, yes. यहाँ पर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के सिखाता है, क्योंकि चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। और हमने देखा था 2-3 हफ्ते के पहले कि किस तरह प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। पहला सिखाया था, हे हमारे पिता। हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम पिता कहते हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, उनके परिवार, हम उनके परिवार में हम लोग हैं। हम आपस में भाई बहन हैं, आपस में हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम एक परिवार में आए हुए हैं। तो हम सब भाई बहन हैं। हमारा घराने का जो पिता, जो मूल है, हमारा परमेश्वर है।
तो यदि मैं परमेश्वर को पिता कह के पुकारता हूं तो हम उनके बच्चे हुए, तो परमेश्वर पिता और बच्चों का, जो बेटा का बेटी का रिश्ता, रिलेशनशिप बराबर होना चाहिए, तब हम उस पिता के सामने हियाव बांध के आ सकते हैं। ये हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था कि तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। उसके चरण में आने से पहले किस आदर के साथ में, किस भय के साथ में, किस पवित्रता के साथ में हम उनके चरण में आते हैं, इस बात को भी हमने देखा था। हमने देखा था कि तेरा राज्य आए, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में राज्य को स्थापित किया है। और यदि आज मेरे हृदय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने राज्य स्थापित किया है, तो हमारे हृदय के अंदर एक किस तरह हमारा जो जीवन के अंदर अगर मेरा परमेश्वर ने मेरे हृदय में राज्य स्थापित किया है, तो उसके राज्य का मैं हूँ, तो किस तरह हमारा जीवन होना चाहिए, इस बात को भी हमने देखा था। और हमने देखा था बाद में कि तेरा जैसा स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। और किस तरह हमें और आपको प्रभु की इच्छा को स्वीकारना है, प्रभु की योजनाओं को हमारे जीवन में स्वीकारना है, और हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, इस बात को हमने देखा था। अभी आज हम देखेंगे यहाँ पर जो भाग को हमने पढ़ा है 11 वचन के अंदर, हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को हमारे जीवन की आवश्यकता के बारे में सिखा रहा है कि हमें क्या मांगना है, हमें कैसे मांगना है। यद्यपि अगर हमारा परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को जानता है, ही नोज आवर नीड मच बेटर देन अस। हमारे ज़रूरतों को हमसे ज़्यादा हमारा प्रभु जानता है कि हमें क्या ज़रूरतें हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक पृथ्वी पर था, उन्होंने कईयों को उन्होंने चंगाई दिया, कईयों को उन्होंने अच्छा मुर्दों को जिंदा किया। ऐसे बहुत अचरज कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया। साथ साथ में हम देखते हैं कि उन्होंने एक रोटी से, एक शारीरिक तौर पर भी परमेश्वर ने भीड़ को क्या किया, खाना खिलाया, क्योंकि हमारा प्रभु जानता है कि हमारे जरूरत क्या है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 21 अध्याय के अंदर, वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीयरोहण होने से पहले, जब पुनरुत्थान होने के बाद में, जब प्रभु के चेले पतरस, यूहन्ना, जो 7 जो व्यक्ति हैं जब समुद्र में जाता है, रात भर पर उनको मच्छी नहीं मिलता है, तो सवेरे जब प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलने के लिए आता है, तो वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना का सेवा का आयोजन नहीं किया। उन्होंने, प्रभु ने उनको ये नहीं पूछा उनको कि लेकिन प्रभु इस बात को जानता था कि मेरे चेले रात भर मच्छी मारने गए थे, मच्छी उनको नहीं मिला है, मेरे चेले भूखा है, प्यासा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने चेलों के लिए मच्छी को तैयार किया, रोटी को तैयार किया, और हनीकॉम जो मधु के छत्ते को प्रभु ने क्या क्या पर तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को हमारे जीवन में जानता है कि मुझे कौन सा समय में क्या चाहिए। परमेश्वर भली भांति हमसे बेहतर वो क्या करता है, जानता है। लेकिन इस प्रार्थना के विषय में जो हमने पढ़ा यहाँ पर, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, इसमें कुछ 6-7 पॉइंट मैं आपसे यहाँ पर मैं बांटना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है और जो भोज मुझे प्रभु ने दिया हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये प्रार्थना के द्वारा सबसे पहले प्रभु हमको आपको ये बात सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से हमें प्रभु के ऊपर हमको निर्भर होना है, उनको ऊपर भरोसा करना है। हमारे आवश्यकता के लिए, हमारे ज़रूरतों के लिए, हमारे कोई भी बात क्यों न हो, ये प्रार्थना के द्वारा इस बात का प्रतीक है, इस बात का हमारे लिए सिखाता है कि हमें और आपको संपूर्ण रीति से हमारे दैनिक कार्य के जीवन में हमें प्रभु की और हमको समर्पित होना है, उनको पर समर्पण, उन पर हमें भरोसा करना है। और यहाँ पर इस बात को हमें
और एक बात को यहाँ पर एक बात को हमें याद दिलाता है इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, कि हम और आप हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मंडल के जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी बैटल, कोई भी युद्ध, कोई भी चुनौतियों का सामना हम और आप नहीं कर पाएंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात, इस प्रार्थना के द्वारा हमें और आपको ये सिखाता है प्रियो, कि हमारा विश्वास जो हमारे परमेश्वर के प्रति, इस बात को, ये विश्वास हमको जगाता है कि जब मैं मेरी जरूरतों के लिए प्रभु से मैं मांगता हूं, मैं तो मेरा प्रभु निश्चय मुझे देगा। इस बात का आश्वासन हमको दिलाता है, इस बात को हमको विश्वास दिलाता है कि जब मैं और मेरा प्रभु के पास में जब मैं मांगने के लिए आता हूं तो परमेश्वर निश्चय ही मेरा जीवन का, चाहे वो शारीरिक जरूरत हो, चाहे वो आत्मिक जरूरत हो, प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमारे नीड को, हमारी जरूरतों को प्रभु निश्चय पूरा करता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, यहाँ पर हम ये प्रार्थना के द्वारा इस बात को हमें सिखाता है कि गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, यहाँ पर हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहाँ पर तीसरी बात, प्रभु हमको इस बात को सिखाना चाहता है कि प्रियो, जो बीता हुआ कल का जो स्ट्रेंथ है, बीता हुआ जो कल का बल है, शक्ति है, मेरे आज के दिन के लिए, मेरे लिए काफी नहीं है। मतलब जो बीता दिन में जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो प्रभु के लिए मैंने किया है, वो आज के दिन के लिए मेरे लिए काफी नहीं है। मीन्स मेरे और आपके जीवन में डेली ब्रेड, हमें और आपके जीवन में प्रतिदिन का भोजन हमको खाना है, हमको चाहिए। बासी खाना या बासी चीजें अगर हम खाते हैं या बासी चीजें अगर हमको भाग लेते हैं तो हमारे लिए ये नुकसानदायक है। तो कल का जो बीता हुआ समय है, जो कल मैंने मांगा था मैंने पाया है। कई बार क्या होता है हमारे जीवन के अंदर कि हमारा जीवन में हम पीछे की बातों को लेकर हम घमंड करते हैं। मैंने फलना साल में इतना काम किया, फलना समय में मैं इतना काम किया, फलना समय में मैंने इतना बड़े बड़े मैंने प्रचार किया, मैंने इतना ट्रैक्स बांटा, इतना बाइबल बांटा। हम उस चीज़ को हम घमंड करते हैं। लेकिन प्रियो, इस बात को बाइबल हमको स्पष्ट कहता है, जो मैंने बीता दिन में काम किया, जो बीता दिन में मैंने सेवा किया, संगति किया, गॉस्पल किया, मैंने जो भी किया उसका प्रतिफल प्रभु ने मुझे दिया है, दे चुका है। सो उस बात को हमको पर्सनल, हमारा प्रेजेंट जीवन में हमको काम नहीं देता है। हमारा टेस्टिमनी, बीता समय का हमारा टेस्टिमनी जो था उसका रिवॉर्ड हमने पाया हुआ है ना। यदि अगर मैं बासी खाना अगर मैं खाता हूँ या बासी खाना मैं रखता हूँ तो वो बासी खाना में क्या होता है, वो खराब होता है, वो खट्टा होता है वो। तो ये बात को मुझे सिखाता कि आज की रोटी हमें दे। इसका मतलब है दिन प्रतिदिन का रोटी हमें और आपको प्रभु से प्रार्थना करना है, मांगना है। हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक जीवन के लाभ के लिए, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, हमारा और आपका जीवन में, विश्वासी के जीवन में हमें और आपको डेली ब्रेड, प्रतिदिन का भोजन हमें प्रभु से मांगना है। ये हो गया तीसरी बात। हमें सिखाता है कि कल का जो स्ट्रेंथ, कल का जो बल, कल हमने जो खाया है उसका बल हमें आज के लिए काफी नहीं है। वी नीड फ्रेश ब्रेड। हमको और आपको एक फ्रेश, एक ताजगी खुराक का हमें जरूरत है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, उन्नति होने के लिए। चौथी बात है, ये प्रार्थना हम और आपको सिखाता है प्रिय, कि ये प्रार्थना कि हमें क्या सिखाता है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये प्रार्थना हमको ये सिखाता है कि हमें कल के लिए हमको चिंता हमको नहीं करना है। फ्यूचर सप्लाईज आर नॉट आवर कंसर्न। भविष्य का, आने वाले दिनों का जो सप्लाई, जो जरूरतें हैं या उसकी जो हमें जरूरत है, उसका चिंता करना हमारा काम नहीं हो, वो हमारा प्रभु का काम है। क्योंकि प्रभु कहता है कि मत्ती की किताब 6 अध्याय में, वो पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, मत्ती की किताब 6 अध्याय के अंदर हम सब जानते वचन को, वो
31 अध्याय 31 और 31 वचन में 6:31 मैथ्यू 6 चैप्टर 31 वर्स, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। 32 वचन, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इस सब का वस्तुओं का आवश्यकता है। 33, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। चौथी बात है प्रिय भाई बहनों, ये प्रार्थना हमको आपको ये सिखाता है कि हमें कल के लिए हमको चिंता नहीं करना है। हमारा भाई हमेशा बोलते हैं ना, सीबी जॉन, वरीज वरियस, व्हेन वी वरी विल बरी अस। जब हम चिंता करते हैं, चिंता हमको क्या करता है, गाड़ देते हैं। तो ये प्रार्थना हमको सिखाता है कि हमें कल के लिए, भविष्य के लिए हमको चिंता नहीं करना है, मेरा क्या होगा, कैसे होगा। और बाइबल ये भी कहता है कि कल का चिंता करके हम अपने बाल को काला से सफेद हम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमको सिखाता है कि हमें और आपको कल के लिए हमको चिंता नहीं करना है। पांचवी बात हमें ये सिखाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिस प्रेयर ये हमको ये नहीं सिखाता है कि मेरा रोटी आज मुझे दे। यहाँ पर कहता है कि गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहाँ पर हमें, हमारी यहाँ पर आता है, यहाँ पर व्यक्तिगत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर यह सिखाता है कि यह प्रार्थना के द्वारा हमारे आपस में यूनिटी, हमारे आपस में वननेस, एकता, हमारे आपस में लव ईच अदर, हम एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम को दिखाता है। और कंसर्न ईच अदर अबाउट आवर नीड, हमारा आपके ये प्रार्थना ये दिखाता है कि हमारे और आपके बीच में हमें एक दूसरे के लिए चिंता है, एक दूसरे की जरूरतों के लिए चिंता है। जब हम एक परिवार में हैं, हमारा पिता एक ही है, हम सब भाई बहन हैं, तो ये प्रार्थना हमको ये सिखाता है कि हमें हमारी रोटी मांगना है, हमारे लिए हमें दिन भर के रोटी हमें दे। प्रियो, कितनी बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाता है कि आज हमारे बीच में एकता होना चाहिए, हमारे आपस में एक मन होना चाहिए, हमारे आपस में प्रेम होना चाहिए, हमारे एक दूसरे के लिए चिंता होना चाहिए, उसको क्या जरूरत है। जैसे अभी हमारा बहन रानी का फोन आया था, वो बोलते कि मेरा आंख नहीं खुलता है, मेरा आंख पूरा बंद हो गया है और मुझे पूरा बुखार है। प्रियो, हमारी चिंता कौन परिवार के लिए, हमको कौन परिवार किस परिस्थिति के अंदर है। आज हर मंडली के अंदर, हर परिवार के अंदर क्या है समस्या है। हमारा पालघर में, बोईसर में हम जानते हैं कि वहाँ पर हमारे भाई बहन जो बहन लोग हैं, उनका पति का उद्धार नहीं हुआ है, उनको सेवा में ना कितना समस्या है। पति का विरोध, बच्चे का विरोध, पति का ताना, बच्चे का ताना, इन तमाम बात को सहते हुए ये हमारे बहनें जो है, हमारा भाई लोग, हमारा बहन लोग हैं, संगति में आता है। ऐसे बहुत से परिवार हमारे मंडली के अंदर, बोरीवली में, पालघर में, हमारे अन्य मंडली के अंदर, ये बात को दिखाता है कि प्रभु हमारे बीच में, हमारे आपस में एकता कैसा है, हमारे आपस में एक मन है कि नहीं है, हमारे आपस में हमारा प्रेम है कि नहीं है। आज बड़ी ये दुख की बात है, आज हमारे विश्वासी के जीवन में, हमारे परिवार में आज प्रेम नहीं है, प्रेम ठंडा हो गया है, एक दूसरे के हमें चिंता नहीं है, कौन क्या पढ़े हुए, हम केवल संडे को मिलते हैं और बाकी दिन सब भूल जाते हैं हम लोग, किसी को हम पूछते भी नहीं है। प्रियो, आज ये चिंता करना कितनी बड़ी बात है ना, हमारे जीवन में, है ना। प्रभु हमको सहायता करे, ऐसा चिंता करने का मन दे विश्वासियों के लिए, परिवारों के लिए। जवान बच्चे हमारे जवान हो रहे हैं, उनका शादी के लिए, हमारे जवान बच्चों के जॉब के लिए, नौकरी के लिए, हमारे जवान बच्चों के भविष्य के लिए, इन तमाम बातें, पढ़ाई के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, ये सारी क्या चिंता है। ये बात हमें दर्शाती है कि हमारे आपस में एकता है कि नहीं है। ये हो गया चौथी बात है। पांचवी बात, छठी बात, ये प्रार्थना हमको ये सिखाता है प्रिय भाई बहनों, सबसे मुख्य बात है, अगर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, तो हमें और आपको स्वर्गीय पिता की ओर से आने वाला रोटी, स्वर्गीय पिता की ओर से देने वाला रोटी
पाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमको आपको तैयार होना है, क्योंकि ये कतई संभव नहीं है कि हमें और आपको परमेश्वर पिता की ओर से एक डिलीशियस फूड या स्वादिष्ट भोजन आएगा, ये कतई हमारे जो में ये आशा रखना ये मूर्खतापूर्ण हमारे जीवन में है। प्रियो, परमेश्वर पिता, हमारा स्वर्गीय पिता की ओर से कभी कभी हमारे जीवन में एक आंसू की रोटी भी आ सकता है। हम जब मांगते हैं प्रभु हमें हमेशा बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी हमको नहीं देगा प्रभु कभी हमारा जीवन में। कभी कभी हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता आपको हमको आंसू का रोटी भी दे सकता है। प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में, आपके जीवन में मुसीबत का रोटी भी हमको दे सकता है हमारा परमेश्वर। कभी कभी हमारे आपके जीवन में दुख का रोटी भी हमको दे सकता है हमारे जीवन के अंदर। लेकिन एक बात याद रखना है, जो भी रोटी हो, चाहे वो आंसुओं के भरा रोटी हो, चाहे वो मुसीबत से भरा रोटी हो, चाहे वो दुख से भरा रोटी हो, वो रोटी है हमारा स्वर्गीय पिता की ओर से आया हुआ है। उसको हमको एक्सेप्ट करना है, उसको हमको ग्रहण करना है, हंस हंस के साथ में, खुशी के साथ में, धन्यवाद के साथ में, आराधना के साथ में हमको क्या करना, उसको ग्रहण करना है। बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन के अंदर, ऐसे आंसू की रोटी को, मुसीबत की रोटी को, ऐसे हमारा जीवन में दुख की रोटी को हम लोग क्या करते, कभी कभी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा पिता, हमारा प्रभु जानता है कि कौन सा खाना मैं मेरे बच्चों को देने से उनके आत्मिक जीवन बढ़ेगा, या कौन सा खाना उसको कौन सा टाइम में चाहिए, ये हमारा परमेश्वर पिता भली भांति जानता है। इसीलिए हमारा समय के मुताबिक कभी कभी हमारा प्रभु क्या होता है, दुख की रोटी देता है। प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं बीता समय में हमारा भाई सूर्यवंशी के परिवार के अंदर हम देखते हैं कितनी बड़ी दुख उनके जीवन में आया था। आज वर्तमान समय में हमारे भाई आमोस के परिवार के अंदर देखिए 3 महीना उसके हमारे भाई हमारे बेटे डेविड कुपर में एडमिट था। वो परिवार इतनी भयंकर कि जब जब उस घर में मैं विजिटिंग किया, उस घर की अवस्था में देखता था मैं, कभी के मुझे खुद बहुत दुख होता था मेरे जीवन के अंदर, इतना दुख भरी रोटी। लेकिन हमारा जीवन में है ना, मैं बहन ने हमेशा मुझे बोलता था कि भाई आज मेरे घर में दुख है, तकलीफ है, रोना है, कल अवश्य मेरे घर में हंसी आएगा, कहते हमारा बहन लक्ष्मी ऐसा बोलता था। हमारे जीवन में हमारा ये इस बात को हमको तैयार होना है। हम जब प्रभु से मांगते हैं तो हमेशा हमको डिलीशियस फूड हमको प्रभु नहीं देता है, कभी कभी आंसू का रोटी हमको ग्रहण करना है। क्योंकि क्या होता है कि हम देखते हैं कि गिनती की किताब 11 अध्याय के अंदर, वहां पर इजरायली लोगों ने परमेश्वर के मन्ना को ठुकरा दिया उन्होंने। गिनती की किताब 11 अध्याय के 6 पद वहां पर पढ़ते हैं हम लोग, अरे हमको तो उस मिस्र का वो ककड़ी का याद आता है, मिस्र का तो वो हमें लहसुन का याद आता है, मिस्र का हम उस तरबूज को याद आता है। उस मिस्र का खाना, ककड़ी, तरबूज, खीरा के, और उसके द्वारा उस खाना को स्मरण करके इजरायलियों ने परमेश्वर की ओर से आया हुआ मन्ना को क्या किया, ठुकराया। उनको अच्छा नहीं लगा, उनको मन्ना को कितने बार खाने का, कभी खा खा के हमारा जीव उब गया, ऐसा बोलता था ये इजरायली लोग। कितने बड़ी दुख की बात है। आज हमारे जीवन में भी हमको जांचना है, क्या प्रभु की ओर से आने वाला रोटी को मैं ठुकराता हूं मैं, क्या मुझे मेरा जी उब गया है मेरा जी। हमारे जीवन में हमको जांचना है कि परमेश्वर की ओर से आने वाला रोटी हमारे जीवन में हमको उसको पाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमको आपको क्या करना है, हमको हमेशा तैयार रहना है। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए वो रोटी है ना, जैसा इजरायलियों ने ठुकराया था, ऐसा हम कई बार कहते हैं, हम लोग ठुकराते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया। बहुत सारे सवाल हमारे मन में आता है, बहुत सारे बातें, शंका मेरे मन के अंदर आता है। लेकिन एक बात को हमको जानना है, हमारा परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है, हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। और हमारा परमेश्वर का दिया हुआ जो रोटी है, चाहे दुख की हो, चाहे आंसू की हो, चाहे मुसीबत की रोटी क्यों ना हो, उस रोटी को हमको एक्सेप्ट करना है। उसी में हमारे जीवन में प्रभु की भलाई क्या हुआ है, छिपा हुआ है। क्योंकि हमारा प्रभु ये जानता है कि हमें और आपको, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए कौन सा रोटी चाहिए, प्रभु को मालूम है। वो समय समय के अंदर कभी दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कभी अच्छा होएगा। क्यों? प्रभु ये चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बने, और वो प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनने के लिए जो रोटी आवश्यकता है,
प्रभु जानता है, इसलिए हमें प्रभु निश्चय देता है। इसलिए 2 वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। भजन संहिता के नीति वचन की किताब 30 अध्याय, उसका नीति वचन की किताब 30 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30, सामित्रू उसका 30 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में पढ़ता हूँ हिंदी में। 7 and 8। मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह मत मोड़। अर्थात व्यर्थ झूठी बातें से मुझे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। यहाँ पर ये सुलेमान लिखता है यहाँ पर, हे प्रभु मैंने केवल 2 बार मैं मांगता हूँ प्रभु आपसे, मुझे केवल 2 बार मुझे चाहिए, 2 चीज मुझे चाहिए। वो क्या है मुझे चाहिए? मुझे ना तो तू धनी बना, ना तो मुझे तो गरीब बना। वो कहता है मुझे दिन भर का मुझे प्रतिदिन का रोटी मुझे खिलाया कर। तो सुलेमान संसार के सबसे ज्ञानी राजा, संसार के सबसे धनी राजा, ना तो वैसा धनी ज्ञानी कोई था, ना कोई होएगा, नहीं कोई होगा। ऐसे ज्ञानी, ऐसे धनी राजा कहता है कि हे प्रभु ना तो मुझे तो गरीब बना, ना तो मुझे धनी बना, मुझे केवल इतना ही कर प्रभु, प्रतिदिन के रोटी मुझे खिलाया कर। हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए प्रिय भाई बहनों, ये प्रभु प्रतिदिन का रोटी, आत्मिक की रोटी हो, शारीरिक रोटी हो, हमारे आत्मिक की चिंता हो या शारीरिक चिंता हो, हमारे प्रार्थना ये होना चाहिए कि हे प्रभु, जैसा यहाँ पर प्रभु ने सिखाया प्रार्थना करने के लिए, हमारी दिन भर की रोटी हमें दे। ओ प्रियो, हमें दिन भर की रोटी, प्रतिदिन का खुराक हम लोग खाते जाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे बलवंत हमको बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह के समान हमको आपको बनाने का प्रभु की इच्छा है। इसीलिए हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, तो प्रभु हमको सहायता करे, प्रभु की ओर से आने वाला रोटी, जो भी रोटी हो, उनको एक्सेप्ट करते हुए प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु, हे प्रभु ना तो मुझे धनी बना ना गरीब बना, प्रतिदिन का रोटी मुझे दिया कर। अंतिम वचन हम पढ़ के हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। Psalm 37 Psalm 37 भजन संहिता की किताब, उसका 37 अध्याय 37 चैप्टर वर्स 5, 37 चैप्टर वर्स 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उन पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर हमको सहायता करें, हमारी मार्ग की चिंता, हमारे परिवार की चिंता, हमारा भविष्य की चिंता, हमारा सब चिंता उन पर रखते हुए, क्योंकि प्रभु का प्रतिज्ञा है कि वह निश्चय पूरा करेगा। प्रभु हमको सहायता करे इन दिनों के अंदर। प्रभु हमसे ये सिखाए कि प्रार्थना, हे प्रभु दिन भर की रोटी हमें दिया कर, है ना। इसलिए हमारे जीवन में हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे न धनी बना ना गरीब बना, दिन भर की, मतलब जो मुझे आवश्यकता है। क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु हमको वो चीज़ नहीं देगा जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है। प्रभु हमको वही देगा जो प्रभु को अच्छा लगता है और प्रभु को मालूम है कि हमें क्या जरूरत है। इसलिए हम प्रभु हमको सहायता करें इन दिनों के अंदर, प्रभु से प्रार्थना करें, हमको सिखाए, ताकि हम भी ऐसा प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे आत्मिक जीवन बढ़ते बढ़ते हुए हम प्रभु के समान बनते जाए। प्रभु छोटे विचार प्रभु आशीष करे।